صبح اس کی آنکھ کھلی تو وہ اس کے بازوؤں میں قید تھی۔ باریک نے ہمیشہ کی طرح اس پر اپنا مضبوطی سے قید حصار قائم کر رکھا تھا، جبکہ اس کے چہرے پر سکون ہی سکون تھا، لیکن ابھی یہ سکون غصے میں بدلنے والا تھا۔ ناشتے کی میز پر یقیناً سب کی شامت آنے والی تھی اور وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ کل رات اس کی اپنی شامت آئی ہوئی تھی اور اب وہ اس کا اس معاملے میں کچھ بھی بولنے کا ارادہ نہیں تھا۔ وہ فریش ہوتی باہر نکلی تب بھی باریک گہری نیند میں سو رہا تھا۔ باریک، اس نے آہستہ سے اس کے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے جگایا تھا۔ وہ آنکھیں کھولتا گہری نظروں سے اس کے نکھرے نکھرے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ پیاری لگ رہی ہو، یہ میری کل رات کی قربتوں کا اثر ہے نا؟ وہ اس کا بازو پکڑ کر اسے قریب کرتے ہوئے بولا تھا۔ آپ فریش ہو جائیں، میں آپ کا ناشتہ لگاتی ہوں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تو وہ صرف ہاں میں سر ہلاتا اٹھ کر بیٹھ گیا، جبکہ اسے مزید قریب کرتا ہوا بولا تھا، وہ میں کیا کہہ رہی تھی کہ باہر ناشتے پر سب کے سامنے پلیز صبح صبح فضول باتیں مت کیا کرو زرش۔ رات کو تمہاری وجہ سے میں اپنا کام پورا نہیں کر سکا۔ اب میٹنگ ہے 9 بجے میری، پتہ نہیں اس سے پہلے بھی کر پاؤں گا یا نہیں۔ وہ سختی سے کہتا اٹھ کر واش روم میں بند ہو گیا، جبکہ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ اگر رات کو وہ خود اپنی مرضی سے بہک گیا تھا تو اس میں اس کا کہاں سے قصور نکلتا تھا۔ وہ تو بس اپنے دیوروں اور نندوں کو بچانے کے چکر میں تھی جو اب ناممکن نظر آ رہا تھا اسے۔ وہ ناشتے کی ٹیبل پر ناشتہ لگا رہی تھی جب زبر نے اپنی کرسی گھسیٹتے ہوئے اس کی طرف اشارہ کیا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی اپنا کام کرنے لگی۔ جب شہیر بھی بھاگتے ہوئے باہر کرسی پر آ بیٹھا، اس نے زبر کے پیر پر پیر مارتے ہوئے پوچھا، جبکہ اس نے بھی زورش کی طرح نفی میں سر ہلایا۔ کام نہیں ہوا کیا؟ شہیر نے پوچھا تھا، جبکہ زبر نے نفی میں سر ہلایا۔ عبادت اور عزا تو صبح صبح ہی عبادت اور عزا کو تو وہ صبح صبح ہی بتا چکی تھی کہ کوئی چانسز نہیں ہے، زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں۔ تمہارے بھائی نے مجھ پر بھی کافی غصہ کیا ہے اس بات کو لے کر، اور وہ پہلے ہی زبر سے ڈری بیٹھی تھی جس نے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ اگر بھیا کی اجازت ملتی ہے تو ٹھیک، ورنہ وہ لوگ نہیں جا سکتی۔ ان لوگوں کے موڈ تو صبح صبح ہی خراب ہو گئے تھے۔ ناشتے کی میز پر بیٹھتے ہوئے بالکل خاموشی تھی، جبکہ باریک کرسی گھسیٹ کر بیٹھا۔ وہ مسلسل اپنا فون کان سے لگائے کسی سے بات کر رہا تھا جب دادی وہاں پہنچی۔ باریک، میں تجھے کتنی دفعہ کہہ چکی ہوں کہ ناشتے کی ٹیبل پر اس موئے فون کو نہ استعمال کیا کر بیٹا، بے برکتی ہوتی ہے۔ دادی بیٹھتے ہوئے کہنے لگیں تو اس نے مسکرا کر خدا حافظ کہہ کر فون بند کر دیا۔ دادی، وہ دراصل آج ایک بہت اہم میٹنگ تھی، اس لیے بس۔ فون کان سے لگایا ہوا تھا۔ خیر اب رکھ دیا ہے نا فون، آپ فکر نہ کریں۔ اور شیرا، تم ایسا کرنا کہ آج رات عزا اور عبادت کو ان کی سہیلی کی مہندی پر لے جانا اور 10 بجے واپس لینے بھی پہنچ جانا۔ 1 منٹ بھی اوپر نیچے نہیں ہونا چاہیے، اور میچ ختم کرتے تم آفس کا چکر لگا لینا، وہ شہیر سے کہہ رہا تھا، جبکہ وہ بے یقینی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اور آپ جناب اپنے ڈی ایس پی سر کی ہی بات مانا کریں، آج کے بعد اگر تم سے کام نہ ہوا نا تو وعدہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اس دفعہ تو خیر میں یہ کر دوں گا، لیکن اگلے مہینے تم نے ہی جانا ہے، یاد رکھنا۔ اب وہ زبر کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ وہ چاروں بے یقینی سے کبھی اسے تو کبھی زورش کو دیکھ رہے تھے۔ وہ ناشتہ ختم کرتا کمرے میں اپنا سامان لینے جا چکا تھا، جبکہ وہ چاروں اس کے آگے پیچھے کھڑے تھے۔ نری ظالم اور بے رحم عورت، ایک لمحے بھی آپ کو ہم پر ترس نہیں آیا؟ ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ ابھی بھیا کی ڈانٹ شروع ہوگی، بتایا کیوں نہیں کہ بھیا کو منا لیا تھا رات کو؟ عبادت اور رضا اس کے گرد بازو پھیلائے اسے زور سے خود میں بھینچتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ وہ خود نہیں جانتی تھی کہ اس نے کب اسے منایا تھا۔ ہاں تو تم لوگوں کو کیا لگا کہ یہ مشکل کام ہے؟ ارے تمہارے بھیا تو میرے لیفٹ ہینڈ کا کام ہے، بس میں نے کہہ دیا کہ یہ ہو جانا چاہیے تو ہو جاتا ہے۔ یہ غصہ شصہ نا وہ صرف تم لوگوں پر کرتے ہیں، اب اتنی پیاری بیوی پر کوئی غصہ تھوڑی کرے گا۔ خیر میں ذرا ان کا والٹ، شوز اور ٹائی دے کر آتی ہوں انہیں، وہ مسکرا کر ذرا ادا سے کہتی کمرے کی طرف بھاگی۔ وہ بھاگتے ہوئے کمرے میں آئی اور پیچھے سے ہگ کر لیا تھا اسے۔ اس کی باہیں پوری طرح اس کے گرد پھیلی ہوئی تھی، لیکن کوشش کے باوجود بھی وہ اسے اپنے بازو میں قید نہیں کر پاتی تھی۔ آئی لو یو سو مچ، آپ بہت اچھے ہیں۔ آپ کیوں ہو اتنے اچھے؟ وہ خوشی سے کچھ زیادہ ہی جذباتی ہوتی جا رہی تھی، جبکہ وہ فون کان سے ہٹاتے اسے گھور کر رہ گیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس وقت فون پر مصروف ہوگا۔ میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں، وہ فون رکھتے بولا۔ سوری، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ فون پر مصروف ہیں، مجھے لگا آپ اپنی تیاری مکمل کرنے کے لیے اوپر روم میں آئے ہیں۔ I'm really sorry۔ وہ شرمندہ ہوتے ہوئے پیچھے ہٹی جب اس نے مسکراتے ہوئے اس کو خود سے قریب کیا تھا۔ چلو اب تو سن لیا نا، میرے سیکریٹری نے تمہارا اظہار محبت جو تم نے میرے لیے ہرگز نہیں کیا بلکہ اپنے لاڈلے دیوروں اور نندوں کے لیے کیا ہے مجھ سے۔ کیا مطلب؟ آپ مجھے مطلب ہی کہہ رہے ہیں؟ وہ پوری آنکھیں کھولتے ہوئے بولی۔ ہاں تو کیا نہیں کہوں؟ اگر میں باہر ان سب کو اجازت نہیں دیتا تو کیا تم تب بھی اس طرح آ کر مجھے
बाहों में लेकर इजहार मोहब्बत करती और वो उल्टा उससे सवाल करने लगा। अब इतनी अच्छी तो वो सच में नहीं थी। हाँ तो करती ना, क्यों ना करती। आप मेरे शोहर हैं, हस्बैंड है, मेरे खामद हैं, पति परमेश्वर हैं, सब कुछ ही सेम होता है जान, तुम कुछ अलग नहीं बोल रही हो। वो उसकी बात काटते बोला, हाँ तो इसके अलावा क्या है आप। अम्मा, खाला, बाजी, काका तो कहने से रही मैं आपको। वो मुंह बनाकर कहती उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। रोमांटिक बीवियां अपने हस्बैंड को बेबी, सोना, डार्लिंग, जानू, जानम इस तरह के लफ्ज़ों से भी पुकार कर अपनी मोहब्बत का इजहार करती हैं। लेकिन हाँ, रोमांटिक बीवियां, उसने लफ्ज़ों को अलग अलग करते हुए कहा तो वो खिलखिला कर हंसी। तो अब आपको ये लगता है कि मैं रोमांटिक बीवी नहीं हूँ, तो क्या हो तुम। वो उल्टा सवाल करने लगा। हाँ तो साबित करो, ऐसा करो कि मुझे किस करो, तुम्हारी एक छोटी सी किस में तुम्हें रोमांटिक होने का सर्टिफिकेट थमा दूंगा मैं। वो उसे चैलेंज दे रहा था, जबकि बस वो उसे देखती रह गई। यकीनन अब वो उसे रोमांटिक बीवी साबित करने के बाद ही यहाँ से निकलने वाला था, उससे पहले तो हरगिज़ नहीं। चलो लड़के उठो गाड़ी से, और हाँ याद रखना मैं वक्त पर लेने आ जाऊँगा तो मुझे ज़्यादा इंतज़ार मत करवाना, बस मिस्ड कॉल दूंगा, पहुँच जाना बाहर। वरना वरना क्या। वो भी कुछ बोलता कि ईज़ा ने उसे आंखें दिखाई। वरना क्या मजलूम भाई, मैं कर ही क्या सकता हूँ, शिकायत करूँगा तुम लोगों की भैया के सामने। और अब तुम यहाँ मेरे सर पर मुसल्लत क्यों हो गई हो। जाओ ना, फजूल में मेरा भी वक्त बर्बाद कर रही हो। और भी काम है मुझे, तुम लोगों को छोड़कर मुझे अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी पर जाना है, पूरे 10 बजे लेने आ जाऊंगा। शेरी मामू, प्यारे मामू, प्लीज़ 10 बजे नहीं 11 बजे आ जाना। हम सब लड़कियां होंगी, एक दूसरे के साथ थोड़ा वक्त गुजार लेंगे ना। आपको तो पता ही है लड़कियों का वक्त चुटकियों में गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता। और सैरिश तो चली जाएगी हमेशा के लिए, बेचारी अपने एग्ज़ाम्स भी तो क्लियर नहीं कर सकी ना, पहले ही दूल्हे राजा पहुंचाए। इबादत उसकी मिन्नतें कर रही थी। जी बिल्कुल भांजी साहिबा, क्यों क्यों नहीं, ऐसा करता हूँ 11 बजे क्या, मैं 12 बजे तुम लोगों को लेने आता हूँ, लेकिन मेरे हिस्से के जूते बाद में तुम लोग खाओगी। कहो मंजूर है। वो जैसे उनके साथ कोई डील करता आगे बढ़ा तो दोनों मुंह बिसोर कर रह गए। शेरी भाई कसम से आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। अगर आपकी जगह जारुन भाई होते तो कुछ भी करते, लेकिन मेरी बात ज़रूर मानते और फिर बचा भी लेते हमें भैया से। वो उदासी से बोली थी। जारन तकरीबन 3 माह से मिलने नहीं आया था, यकीनन वो उसे मिस कर रही थी। गुड़िया क्या हो गया, इस तरह से मुंह तो मत बनाओ यार। जारन भाई की बात कुछ और है, भैया उनकी बात समझ जाते हैं, लेकिन मेरी बात को भैया समझने की कोशिश हरगिज़ नहीं करते, बल्कि मेरी तो बैंड बज जाती है। तुम लोगों को तो पता ही है। वो उन लोगों को अपनी मजबूरी बताने लगा, जबकि वो दोनों मज़ीद कुछ ना कहते हुए अंदर की राह ले चुकी थी। यकीनन उनकी इमोशनल ब्लैकमेलिंग भी यहाँ उनके काम हरगिज़ नहीं आने वाली थी। सो वो वक्त पर वापस घर जाने का फ़ैसला करता हुआ उनको बाय करके अंदर चले गए, जबकि वो भी गाड़ी मोड़ते खुद को किसी गहरी नज़रों के हिसार में महसूस कर रहा था। गाड़ी एक तरफ लगाते उसने आगे पीछे हर तरफ देखने की कोशिश की, लेकिन बहुत कोशिश के बावजूद भी उसे कोई ऐसा नज़र नहीं आया था। यार यहाँ पर इतने लोग हैं, लगता है मैं ही किसी गलतफहमी का शिकार हो गया हूँ। वो सोचते हुए गाड़ी आगे बढ़ा गया था। आपकी तबीयत तो ठीक है ना बाबा, आप अच्छा तो महसूस कर रहे हैं ना, हम थोड़ी ही देर में वापस चले जाएंगे। वो हर थोड़ी देर के बाद मर्दों की साइड पर अपने बाबा को देखने के लिए आ रही थी। क्यों जाएंगे आप लोग, मैं आप लोगों को कहीं नहीं जाने दूंगी। मैंने तुम्हें इतनी दूर से बुलाया है तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे यहाँ रहने का इंतज़ाम नहीं कर चुका हूँगा। कम ऑन अरूश, मैंने घर में ही तुम्हारे और तुम्हारे बाबा के लिए सारे अरेंजमेंट्स करके रखे हैं। सहरिश मेहंदी की दुल्हन बने उसके पीछे पीछे ही आ गई थी। नहीं नहीं बेटा सहरिश, कोई बात नहीं, हमने होटल में कमरा बुक करवा लिया, हम रात को वहीं रुकेंगे और जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती हम यहीं हैं, तुम्हारे शहर में ही रहेंगे हम। क्यों अंकल, इतना बड़ा घर है तो आप लोगों को भला होटल में रहने की क्या ज़रूरत है। एक तो आप लोग कराची से यहाँ ख़ास मेरी शादी अटेंड करने के लिए आए हैं और आप लोग चाहते हैं कि मैं यूं ही आपको किसी होटल में रहने दूं। हरगिज़ नहीं, आप लोग मेरे यहाँ आए हैं तो मेरे यहाँ ही रुकना होगा आपको। मैं तो आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरी सहेली को यहाँ मेरी शादी के लिए लेकर आए हैं, वरना मुझे तो लग रहा था कि शायद ये मेरी शादी अटेंड कर ही नहीं पाएगी। वो इतने प्यारे अंदाज में बात कर रही थी कि हाजी साहब इनकार ना कर सके। अरूश, मुझे लग रहा है अंकल थक रहे हैं, तुम ऐसा करो इन्हें ऊपर वाले कमरे में ले जाओ, आप लोगों के रहने का इंतज़ाम मैंने वहीं पर किया है। मैं भी स्टेज पर जाती हूँ, वरना दुल्हन को इस तरह देख कर ना अभी मेरी फैंटी लग जाएगी अम्मी के हाथों। वो मुस्कुराते हुए स्टेज की तरफ बढ़ गई, जबकि वो अपने बाबा का हाथ थामे उन्हें ऊपर की तरफ ले जा रही थी। अभी वो बाहर पार्किंग से गुजरकर घर के अंदर दाखिल हो ही रहे थे जब उसे ऐसा लगा कि उसके सारे मसलों का हल खुद निकल कर उसके सामने आ चुका है।
सामने गाड़ी में कोई आदमी बैठा बाहर की जानिब जा रहा था। वो बाबा का हाथ छोड़कर भागते हुए उसके पीछे घर से निकली थी, लेकिन ऐन वक्त पर उसके सैंडल उसे धोखा दे गए। वो बुरी तरह से गिरी और इससे पहले कि वो गिरकर वापस उठकर बाहर निकलती, वो आदमी जरा सी देर में गाड़ी बाहर रोकता दोबारा से गाड़ी स्टार्ट कर गया। वो भागते हुए बाहर तक आई, लेकिन इससे पहले वो गाड़ी वहां से लेकर निकल गया था। बाबा बाबा वो वही था ना, वो वही था, मैंने देखा है उसे, वो वही आदमी था। वो उन्हें बताने लगी थी, जबकि बाबा हैरानगी से उसे देख रहे थे। अरे जनाब, हमने तो सुना था कि दामियार शाह शादी पर आएगा, हमें तो कहीं दूर दूर तक दामियार शाह नजर नहीं आ रहा। ये कोई पांचवा आदमी था जो उनसे ये आकर सवाल कर रहा था। जी, वो मेरे वलीमे पर आने वाला था। असल में उनकी ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत ज़रूरी मीटिंग आ गई जिसमें उसे जाना पड़ गया, तो वो मेरी वजह से अपनी मीटिंग कैंसिल कर रहा था। लेकिन मैंने कहा कि काम को पहली प्रायोरिटी देनी चाहिए। मेरे बार बार समझाने के बाद ही गए। अभी मैं उसे कॉल करूँगा। मुझे कह रहा था कि तुम्हारी शादी का एक एक मोमेंट इंजॉय करना चाहता हूँ। बहुत ख़ास दोस्त है वो मेरा। वो अपने बाप के साथ खड़ा सबसे मुबारकबाद वसूल कर रहा था। थोड़ी ही देर में मेहंदी की रस्म शुरू होने वाली थी। सहरिश उसकी कज़न थी और निकाह पहले ही हो चुका था, इसलिए सारी रस्में एक साथ हो रही थी। लेकिन वो जानता था यहाँ जो बड़े बड़े बिजनेसमैन अपना वक्त निकाल कर आए थे, उसके पीछे वजह दामियार शाह ही था, जो यहाँ अगर किसी पर नजरे करम कर देता तो उसकी किस्मत रातों रात बदल सकता था। अगर इतना अजीज दोस्त था तो उसका शादी पर होना ज़्यादा ज़रूरी था ना। उनमें से एक आदमी ने कहा, राहील तुम तो अपने दोस्त को फ़ोन करो, मेरे ख्याल में ये सब लोग तुमसे ज़्यादा तुम्हारे दोस्त की यहाँ आमद के लिए इकट्ठे हुए हैं। उसके बाप ने उसे घूरते हुए कहा तो उसने फ़ौरन हाँ में सर हिलाते दामियार के नंबर पर कॉल मिलाई, लेकिन दूसरी तरफ से नो रिस्पॉन्स। बाबा, यहाँ मेहमानों के बीच इससे क्या ही बात हो पाएगी, मैं थोड़ी देर के बाद फ़ोन करता हूँ ना। मलिक साहब आइए ना, आपके आने से तो महफिल में चार चांद लग गए हैं। उसने उन सब लोगों की नज़रों को महसूस करते सामने से आते मलिक साहब को वेलकम किया, जबकि गुस्सा तो उसे दामियार पर आ रहा था। वो उसके वलीमे पर ना आया तो उसकी सब बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जानी थी सबके सामने। और सबसे बड़ा मसला तो उसका बाप था, जिसके सामने वो ज़रूरत से ज़्यादा ही शोखियाँ मार चुका था इस मसले को लेकर। अब जो भी था उसे दामियार से बात करनी ही थी, कि वो भी वीडियो कॉल पर, ताकि उसकी बात का यकीन हो जाए कि वो दामियार से ही बात कर रहा है। वैसे तो दामियार ने वादा किया था कि वो वलीमे पर आएगा, तो यकीनन वो उसके वलीमे पर आने वाला था, क्योंकि दामियार शाह कभी अपना वादा नहीं तोड़ता। लेकिन इस वक्त वो यहाँ मौजूद कई नज़रों का शिकार हो रहा था। थोड़ी ही देर में रस्म शुरू हो गई तो अब उसे कुछ सुकून मिला था। बहुत प्यारी लग रही हो सैरिश, इबादत रस्म करते हुए उसके कान में गुनगुनाई तो वो शर्मा कर नज़रें झुका गई। बहुत शुक्रिया, उसने मुस्कुराते हुए कहा, जबकि इबादत के बाद अब इज़ा उसी साइड पर बैठकर उसे मेहंदी लगाने लगी, जबकि दूल्हे के साथ उसके दोस्त बारी बारी बैठ रहे थे। आओ अरूश। इबादत, इज़ा, ये मेरी दोस्त अरूश है, जिसका जिक्र भी किया था मैंने जब मैं कराची गई थी ना छुट्टियों पर। इसी ने मेरी जान बचाई थी। डॉक्टर ने तो कह दिया था कि मेरे ब्लड का अरेंज कहीं से नहीं हो सकता। पता नहीं अल्लाह पाक ने कैसे इसे मेरी मदद के लिए भेज दिया। इसने मुझे खून देकर मेरी जान बचाई और फिर हम दोनों एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड्स बन गई। वो मुस्कुराते हुए अरूश का हाथ थामते उसे अपनी सहेलियों से मिलवाने लगी थी। हालांकि सैरिश के साथ दोस्ती भी उसकी उन्हीं की वजह से हुई थी, वरना वो खुद में कैद रहने वाली लड़की खुलकर किसी से बात तक नहीं करती थी। उसके बाबा तो अक्सर कहते थे कि दोस्त बनाया करो, सहेलियाँ बनाया करो, बाहर निकला करो, खुद को दुनिया के साथ एडजस्ट करो, लेकिन वो नहीं कर पाती थी। लेकिन सैरिश कब उसकी बेस्ट फ्रेंड बन गई उसे खुद भी पता ना चला। उसकी शादी में आने के लिए उसके बाबा ने 3 महीने तक पैसे जोड़े थे, ताकि वो उसे उसकी इकलौती सहेली की शादी में ला सकें। ये तुम्हारी सहेली है, ये तो अब हमारी भी सहेली है। इज़ा ने फ़ौरन अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए उठकर उसके गालों से अपने गाल मिलाए थे, जबकि उसके मासूमाना अंदाज पर वो मुस्कुरा दी। जब इबादत ने सामने बैठी एक इंतहाई खूबसूरत लेकिन बेजार तरीन लड़की की तरफ इशारा किया। हाय अल्लाह, कितनी प्यारी है ना, इज़ा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, जबकि सहरिश भी उसके अंदाज पर मुस्कुराई। प्यारी तो है, लेकिन इंतहाई घमंडी और मगरूर है, किसी से सीधे मुंह बात तक नहीं करती। शनाया सयाल नाम है इसका। सहरिश ने किसी तोते की तरह इन्फॉर्मेशन दी थी, जबकि उनके देखने पर वो मुंह फेर गई। छोड़ो यार, दफ़ा करो, मुझे ऐसी नकचड़ी लड़कियां वैसे भी पसंद नहीं। पता नहीं खुद को क्या समझती है, खूबसूरत है तो क्या। वो मुंह बनाकर चेहरा फेर गई। अरे यार, मैं तो ज़बर भाई के लिए देख रही थी। अम्मा कह रही थी ना कि अब उनकी शादी होगी, तो सोचा उनकी दुल्हन ही ढूंढ लूँ, लेकिन ये वाली रिजेक्ट। वो खिलखिलाते हुए उसके हाथ पर हाथ मार चुकी थी। अब वो जितनी देर यहाँ बैठी रही थी उल्टी सीधी बातें करती रही, जबकि उनकी बातों पर अरूश हंस हंस कर पागल हो रही थी।